شكرا هديت قلبي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ شب برات کی اہمیت، شب برات کی فضیلت اور شب برات کے نوافل کے حوالہ سے ہے۔ شب برات چونکہ شعبان کی 15 تاریخ کو آتی ہے، لیکن اس کی کیا اہمیت ہے احادیث کی رو سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے گا، اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عبادات کے کون سی عبادات اور کس طریقہ سے ادا کی جائیں گی وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں۔ وظیفہ جو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ شب برات کی اہمیت کے حوالے سے اور اس کے نوافل سے جو ہیں وہ وابستہ ہو سکیں، وہ جان سکیں شب برات کی عبادات جو ہیں وہ کون سی ہیں اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے شب برات کی اہمیت جو ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو یعنی 15 شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو کہ شب برات کی اہمیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ شب برات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک کتاب دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن کے نام اس کتاب میں ہیں ان کی روحیں قبض کر لو۔ اس رات میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس رات میں جن لوگوں کو اس سال میں اللہ تعالیٰ نے موت کا حکم دینا ہوتا ہے، جن کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، ان کے پتے اس رات میں جھڑ جاتے ہیں اور گناہوں سے بخشش کی جاتی ہے، اور اللہ کے حکم سے جنہوں نے اس دنیا میں سال میں آنا ہوتا ہے ان کے پتے جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں پتے جو ہیں وہ تمام تر جھڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پتوں پر ایک نشان فرما دیتے ہیں اور ملک الموت کو بتا دیتے ہیں کہ ان لوگوں کی روحوں کو اس سال قبض کرنا ہے۔ ملک الموت اس حساب سے ان روحوں کو اسی سال کے اندر قبض کر لیتے ہیں۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو نہایت خیر والی رات بتایا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات اللہ کے نیک بندے رسوائی اور ذلت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس رات کو صلاۃ الخیر پڑھے گا یعنی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 70 بار نظر کرم فرمائے گا اور ایک بار نظر کرم سے اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ یعنی کہ اس رات میں صلاۃ الخیر پڑھنے والے کو اللہ کے حکم سے 70,000 حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی اور آخروی 70,000 حاجتیں پوری فرمائیں۔ اس رات میں صلاۃ الخیر پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ 70,000 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ شب برات کے نوافل جو ہیں، شب برات کے جو ٹوٹل نوافل ہیں وہ 7 طریقہ کار سے میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، جو بھی آپ کو آسان لگے جس طریقہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہت ساری فضیلتیں عنایت فرمائیں گے اور آپ کی حاجات پوری ہوں گی، روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات
नजात हासिल होगी और सबसे बढ़कर के गुनाहों से बख्शिश अल्लाह ताला जो है वो आपको अता फरमाएंगे। और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए और अपनी हाजात को अल्लाह से पूरा करवाइए। ये जो टोटल 7 तरीक़ाकार हैं, सबसे पहला जो तरीका है शब बारात के नफिल नमाजों का वो ये है। सबसे पहले तरीकाकार जो है कि आप 2 रकत नफिल नमाज पढ़ेंगे तहियतुल वुज़ू इस तरह से कि तहियतुल वुज़ू के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि तहियतुल वुज़ू के जो 2 नवाफिल हैं वो इस तरह से अदा करने हैं कि वुज़ू करने के फ़ौरन बाद आप 2 नफिल अदा करेंगे तहियतुल वुज़ू की नीयत के साथ कि 2 नफिल जो है वो तहियतुल वुज़ू के पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, और उसको उसी तरह से अदा करना है जिस तरह से हम आम नमाज पढ़ते हैं, उसी तरह तहियतुल वुज़ू के नफिल आप अदा करेंगे। और उसके बाद आपने तरकीब ये रखनी है कि हर रकत में आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरतुल फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पढ़नी है। 2 रकत पढ़नी है आपने इस तरह से। और इसकी फजीलत जो है वो ये है कि हर कतरा पानी के बदले आपको 700 रकत नफिल का सवाब मिलेगा, यानी वुजू में जितना भी पानी आप सर्व करेंगे उसके बदला में आपको हर कतरा पानी के बदले 700 रकत नफिल का सवाब मिलेगा। ये तमाम जो फजाइल मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ ये तमाम अहादीस से साबित शुदा हैं, तो इसमें शक मत कीजिएगा, शक की कोई भी गुंजाइश इसमें नहीं है। तो नवाफिलों को अदा कीजिए और इन फजाइल को हासिल कीजिए। दूसरा तरीका कार जो है वो ये है कि 2 रकत नफिल नमाज आपने पढ़नी है। तरकीब जो है वो ये रखनी है कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 15 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। उसके बाद आपने सलाम फेर कर 100 मरतबा दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फजीलत इस तरह नमाज पढ़ने की जो है वो ये है कि रोज़ी में बेपनाह बरकत होगी, जो गम से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह निजात फरमाएंगे और गुनाहों की मगफिरत कर दी जाएगी। तीसरा तरीका कार जो है वो ये है कि 8 रकत आपने 2-2 करके नवाफिल इस तरह से अदा करने हैं कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद आपने 5 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पढ़नी है। और फजीलत इसकी ये है कि गुनाहों से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको पाक फरमा देंगे और दुआएं कबूल होंगी और सवाब अजीम अता फरमाएंगे। चौथा तरीका कार जो है वो ये है कि आपने 12 रकत नफिल 2-2 करके इस तरह से अदा करने हैं। तरकीब तरीका कार ये है कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। 12 रकत नफिल नमाज इस तरह से पढ़नी है जो मैंने आपको तरीका कार के अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 10 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़नी है। जब 12 रकत कंप्लीट हो जाएं तो 10 मरतबा कलमा तौहीद यानी चौथा कलमा पढ़ना है, 10 मरतबा कलमा तमजीद यानी तीसरा कलमा पढ़ना है और 10 मरतबा दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 5वां तरीका कार जो वो ये है कि 14 रकत आपने 2-2 करके अदा करनी है। तरीका जो है वो ये है कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जिस तरह से आप नवाफिल अदा करते हैं कोई भी सूरत पढ़ लीजिए और 14 रकत को इस तरह से अदा कर लीजिए। और फजीलत इसकी ये है कि जो भी आप दुआ मांगेंगे उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपकी वो दुआ जरूर कबूल होगी। तरीका नंबर 6 जो है वो ये है कि आपने 4 रकत जो है वो 2-2 करके अदा करने हैं। इस तरह से तरकीब रखनी है कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद 50 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। इसकी फजीलत जो है वो ये बयान हुई है कि गुनाहों से अल्लाह ताला ऐसे पाक फरमा देंगे कि जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। नवाफिल का तरीका कार नंबर 7 जो है वो ये है कि आपने इस तरह से 8 रकत अदा करनी है 2-2 करके कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 11 मरतबा पढ़नी है। और इसका सवाब जो है यानी ये तमाम आपने 8 रकात पढ़कर इसका सवाब खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नजर कर देना है। और उसकी फजीलत आपको ये हासिल होगी जब आप इस तरह से अमल करेंगे कि इन 8 रकात का सवाब जो है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को
नजराने में पेश करना है। फजीलत यह है कि आप फरमाती हैं, मैं इस नमाज पढ़ने वाले की शफाअत किए बिना जन्नत में कदम ना रखूंगी। हज़रत फातिमा ने फरमाया है कि जो भी इस तरह से ये अमल शब बरात में करेगा, इंशाअल्लाह ताला मैं उसकी क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से मैं उसकी शफाअत किए बिना जन्नत में कदम ना रखूंगी। और उसके बाद जब आप ये नवाफिल अदा कर लें, जो तरीक़ाकार मैंने आपको 7 तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर बताए हैं शब बरात में नवाफिल को अदा करने के, आपको जो भी आसान लगे, जो आपकी हाजत के मुताबिक हो, जो भी आप फजीलत हासिल करना चाहते हैं, इनमें से जो आपको आसान लगे वो आप अदा करें इंशाअल्लाह ताला, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर फरमाएंगे। जो फजीलत आप देखकर ये पढ़ रहे हैं वो फजीलत आपको ज़रूर हासिल होगी अल्लाह के हुक्म से। और उसके साथ साथ अगले दिन 15 शाबान को रोज़ा भी ज़रूर रखिए, क्योंकि रोज़ा की फजीलत भी बयान हुई है, जो एक हदीस से साबित है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने शाबान में एक दिन रोज़ा रखा, इसको मेरी शफाअत हलाल हो गई। एक और हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स शाबान की 15 तारीख को रोज़ा रखेगा, इसे जहन्नम की आग ना छुएगी। ये फ़ज़ाइल और ये तमाम तर नवाफिल और इसकी फ़जीलत, अहमियत और तमाम मैंने आपसे शब बारात के हवाले से मैंने आपके साथ ये तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला इसको कबूल और मंजूर फरमाए, आपकी तमाम तर मुश्किलात को आसान करें और इस रात को आपके लिए बाबरकत बनाए और तमाम आपकी मुश्किलात पूरे साल की जो है वो अल्लाह ताला दूर करें। शब बारात बहुत ही अहमियत की हामिल जो है वो रात है। इस रात में अल्लाह ताला तकदीर के फैसले करते हैं और इंसान के नामा अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं और अगले साल की तमाम तर अल्लाह ताला तकदीर लिखते हैं क्या इसके साथ होना है, और उस पूरे साल में ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले होते हैं। तमाम तर हालात अल्लाह ताला जो है वो दुनिया में भेजते हैं कि क्या होना है, क्या हुक्मरान कैसे होंगे और क्या उनके साथ तमाम लोगों के साथ अगले साल तक क्या मामलात पेश आने वाले हैं। वो अल्लाह ताला जो है फरिश्तों के ज़रिए से दुनिया में वो तमाम मामलात अल्लाह ताला नाजिल फरमाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रात आपके लिए बाबरकत हो, पूरा साल आपका बाबरकत तरीके से गुजरे और आपकी तमाम हाजात पूरी हों, रंजो गम से निजात हो, गुनाहों से मग़फ़िरत हो, इस वीडियो में जो नवाफिल बताए गए हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर उसके हिसाब से जो वो नवाफिल अदा कीजिए, इबादत को अपना इस रात में जो है वो इन इबादत को ज़रूर कीजिए और सबके लिए दुआ कीजिए। ऐसे लोगों के लिए भी दुआ कीजिए जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको बेहतर रोज़गार अता फरमाएं। जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाएं। जो बेनमाजी हैं, अल्लाह ताला उनको नमाज की तरफ लाए। जो हालात से तंग हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। जो अपनी ज़िंदगी की जो भी हाजात चाहते हैं वो उनकी पूरी हो, तो अल्लाह ताला इस रात की बरकत से अल्लाह ताला उनकी तमाम तरह हाजात को पूरा फरमाएं। और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि आपकी वो मुश्किलात इसके वसीला से, इसके तवस्सुस से जो है वो ताला हल करें और इसको सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। अगर इस वीडियो के हवाले से आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।